नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की कमान संभालने के बाद दुनिया भर में भारत की छवि बदली है, जबकि इससे पूर्व भारत की छवि भ्रष्ट, कमजोर अर्थव्यवस्था, लगातार आतंकवादी हमलों और अस्थिर सरकार की कमी वाले देश के रूप में थी। आप भी सुने। Recently, a deal was done for purchasing of the commercial planes to the tune of 470 planes with European Airbus and with Boeing American company. And you all know that Macron came for that while signing of the deal. And you also know that Joe Biden thanked Prime Minister Modi that this is going to create employment to 44 states of United States, and it will be giving some 1 million jobs to the people in America. The same way, the purchasing of the Rolls-Royce engine, Rishi Sunak said that India is now one of the leading economies, and in coming times till 2050, India will become the third economic power in the world. These are the endorsements. This show how the world leaders are now looking towards India and how India is taking initiative under the dynamic leadership of Prime Minister Modi. India now does not shy to take positions. For a long time, India has been shying from taking hard positions. But here I can say that under Prime Minister Modi, on international issues, India could take a stand and on complex issues, and that to position of strength. And when I say so, the classic example is the Russia-Ukraine war. India took a stand which may not be acceptable to all countries, but it is being appreciated by all that India at least takes a stand and stays with it. That is what I'd like to share with you. So this is one thing which has happened. One more thing has happened is that India and Pakistan were always hyphenated. When we used to talk in one breath, we used to say India and Pakistan, not me, but on the international scene. Everybody used to talk like that. This de-hyphenation has taken place. Now, position of India is far, far ahead than Pakistan, number one. Nobody keeps it in the same bracket, number one. Number two, Pakistan has been isolated as far as the issue related to terrorism, and the world knows it. So this is also a very important aspect which has been carefully pushed forward in the best possible manner by Prime Minister Modi. That is, I would like to share with you. This one more thing I would like to share with you is that the visit to Israel and Palestine and visits to Palestine and Israel separately shows that India is now a country under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, capable of handling two different countries by India in the best possible manner. राहुल गांधी ने बुधवार यानी कि 22 फरवरी को मेघालय में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बीजेपी की सहयोगी बताया, तो वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। आप भी सुने। You must have heard a few days ago I made a speech in Parliament and I asked the Prime Minister some direct questions. I asked the Prime Minister about his relationship with Mr. Adani. We're talking about corruption in Meghalaya, so I'd like to also mention corruption at the center, which is at a scale that has probably never been seen ever in Indian history before. One businessman, close friend of the Prime Minister, goes from being the 609th
richest man in the world to the second richest man in the world. Matter of years. He owns the ports, the airports, he does construction, he dominates the defense industry, he dominates the apple trade in Himachal Pradesh. Every single business is open to him, he has access to it. Why? Because he is close to the Prime Minister. And I asked this question to the Prime Minister. I stated all the facts. I showed how, without having any experience in the airport business, Mr. Adani gets the most profitable airports in the country. Now, I'd like to come to what the Congress party is saying in this beautiful state of yours. First of all, 47 out of our 60 candidates are fresh, young, below the age of 45, and 10 of them are women. And it is our aim to connect to the aspirations of the young voter, to show a youthful Congress party, but also a Congress party that has experience. And we are talking about providing Meghalaya with an inclusive vision that will take all members of Meghalaya's society forward together. As you know, we recently did the Bharat Jodo Yatra. We walked from Kanyakumari in the deep south of India to Srinagar in the extreme north. A journey of almost 4,000 kilometers. It took us slightly more than 4 months. And the reason we were forced to do this was because the BJP and the RSS, who are running the government in India today, have captured every single institution of the Indian state. Whether it is Parliament, or it is the media, it is the bureaucracy, the Election Commission, the judiciary, all these institutions are under pressure, are being attacked by the ideology of the RSS and the BJP. छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश सफल नहीं होगी। जिस प्रकार से काम कर रही है, जबकि उनको दलगत राजनीति से ऊपर होकर काम करना चाहिए था, लेकिन वे राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो ईडी द्वारा कुप्रचित डायरी एंट्री के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने, झूठे प्रकरण, झूठे बयान दिलाकर अधिकारियों को, नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि रमन सिंह जी, उसके परिवार के मामले में पूरे साक्ष्य ईडी के पास है, चाहे वो नान घोटाले में हो, चाहे वो चिट फंड कंपनी में, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई ईडी नहीं कर रही है। निर्दोष नागरिकों को भी लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश, कल जिस प्रकार से छापा डाला गया, लेकिन कहीं भी कोई जब्ती दिखाई नहीं गई है। और कितने बड़ा छापा डाला गया था, उद्देश्य केवल यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने, परेशान करने और खासकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब 3 दिन बचा है अधिवेशन, और उसको ये प्रभावित करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की जनता, हमारे साथी सब लोग एकजुट होकर तो लड़ाई लड़े, तो देश भर में संदेश गया है कि ये अधिवेशन को ही प्रभावित करने के लिए।
एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आदिवासी उसके लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। कहा कि मेरी जगह आदिवासी हीरालाल को रायपुर में कांग्रेस सम्मेलन। वास्तव में हद करती है कांग्रेस। एक ही परिवार के तीन लोग और तीनों का चलावा। तो आदिवासी नेता हीरालाल अलावा उसके साथ कर दिया छलावा। अब कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आदिवासी उनके लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट हो गया जमुना देवी जी के बाद में, भूरिया जी के बाद में, बलबीर सिंह जी के बाद में। ये साबित हो। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सरकार के बजट पर जमकर कटाक्ष किए और इस बजट को निराशाजनक बता दिया। उन्होंने कहा कि बजट से प्रदेशवासियों को निराशा हाथ लगी है। उम्मीद थी कि इस बजट में गन्ना किसानों को कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि महंगाई के दौर में 35% से ज्यादा कृषि लागत बढ़ गई है। गन्ना किसान की बढ़ती फसल पर तो सरकार की नजर है, लेकिन पहले से गन्ना मूल्य बढ़त की मांग कर रहे किसानों को सरकार ने धोखा दिया है। ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार के अंदर कोई भी मानवीय संवेदना नहीं, ना तो किसानों के लिए इस बजट में कुछ, ना युवाओं के लिए, ना ही आम आदमी के लिए। गन्ना किसान जो लगातार मांग कर रहे थे कि उनके गन्ना मूल्य की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने बढ़ाने के बजाय उनकी बढ़ती फसल पर तो नजर रखकर अपनी पीठ थपथपा ली। 35% कृषि लागत बढ़ने के बावजूद भी इस बजट में ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए कि जिससे किसानों को राहत मिले। युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता मंचों से करते हैं, लेकिन 45 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी का दौर प्रदेश में गुजर रहा है और युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं। सिर्फ प्रचार और झूठ के सहारे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा और रोजगार मांगने पर लाठी मिल रही। आम आदमी को लेकर, निवेशकों को लेकर 25,000 निवेशक आए, 19,000 एमओयू हुए, लेकिन इस बजट में यह दिखाता है कि उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। तो आखिर निवेश कैसे होगा, ये प्रदेश समझना चाहता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नया नहीं। ये बजट सिर्फ और सिर्फ सफेद कागज पर लिखा हुआ सफेद स्याही का झूठ का पुलिंदा है। जिस तरीके के पिछले बजट साबित हुए, उसी तरीके से यह भी बजट साबित होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक राम कदम ने सामना अखबार में लिखे लेख पर तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे आप खुद का घर नहीं संभाल सके और निकले हैं देश के विपक्ष को जोड़ने के लिए। ठाकरे जी आज के सामना अखबार में कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वे देश के समूचे विपक्ष को एक साथ जोड़ेंगे। वे खुद के घर को संभाल नहीं पाए, खून के रिश्तेदार, सगा भाई, भाभी, उनके बच्चे, सारा परिवार जिन्हें छोड़ के चला गया। इतना ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय बाला साहब की जिन्होंने सेवा की, वे सेवक तक उन्हें छोड़ करके चले गए। विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री जो उनके साथ रह न सके और वो निकले हैं देश के विपक्ष को एक साथ। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से सवाल पूछा कि क्या एमपीएससी के सवाल पर शरद पवार की चाल इसलिए चल रही है क्योंकि वे इसके खिलाफ हैं। एसटी कार्यकर्ताओं के सदन में आने पर सत्ता में रहे शरद पवार ने उपेक्षा क्यों की? प्रश्नासंदर्भात
80 वर्षाचा योद्धा मैदानात उतरल्याचं कौतुक त्या ठिकाणी त्यांच्या बगल बच्चनकडून सुरू आहे. खरं म्हणजे एमपीएससीचा प्रश्न कधी निर्माण झाला? त्यांच्याच पक्षाच्या सत्तेच्या काळामध्ये हा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा आपण काळजी घेतली नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांचा 3-3 महिने संप होता, अगदी घरापर्यंत आपल्या संप आला. तेव्हा पाझरच्या प्रश्न संदर्भात फुटला नाही. शिक्षकांचे प्रश्न होते, शेतकऱ्यांचे प्रश्न होते, तेव्हा त्या ठिकाणी लक्ष घालायला वेळ मिळाला नाही. परंतु आता केवळ विरोधासाठी विरोध, सत्तेच्या विरोधात विरोध म्हणून अशा प्रकारचं राजकारण, नौटंकी करण्याचा प्रयत्न आहे. फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर ने अपनी फिल्म मैं दीनदयाल हूं के लिए दिल्ली में आरएसएस के इंद्रेश कुमार से आशीर्वाद लिया. अभिनेता अन्नू कपूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार का जन्मदिन मनाने दिल्ली आए थे और अपनी बनने जा रही फिल्म मैं दीनदयाल हूं के लिए उनका आशीर्वाद लिया. My whole dedication and loyalty is towards my mother India, माँ भारती, भारत माता. इसके अलावा I don't belong to any religion. I don't belong to any political party. My everything is my mother India, माँ भारती, भारत माता. अब बची बात कि जिस वजह से यहाँ हमारे प्रोड्यूसर रंजीत शर्मा जी हैं, हमारे डायरेक्टर ये, और माननीय के कहने के ऊपर, माननीय के सपोर्ट के ऊपर मेरा नाम आया कि अन्नू कपूर ये रोल कर सकता है. हमारी जो एमसीबी में आम आदमी पार्टी के जिला सचिव ने हमला बोला. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मनेंद्रगढ़ का मुद्दा नहीं, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश का मुद्दा है. उन्होंने कहा कि आम आदमी अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है तो पूरे प्रमाण के साथ लगाया जा रहा है यह आरोप. पहला हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मार्च को रायपुर आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है हमारी पार्टी. और 5 मार्च को ही एक तरह से यहाँ पे चुनावी शंखनाद होगा 2023 में. और जिस तरह भ्रष्टाचार का जिस तरह आपने बताया भरतपुर में हो रहा है और आपके एक कार्यकर्ता को खरीदी बिक्री का मामला सामने आया, क्या है बताएंगे इस पर? सर, भ्रष्टाचार सिर्फ भरतपुर सोना तो मनेंद्रगढ़ का मुद्दा नहीं है. भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है. आज 15 साल का जो भाजपा का शासनकाल था, उस समय जो स्थिति मनेंद्रगढ़ अस्पताल की थी, आज 5 साल बीतने के बाद भी वही स्थिति मनेंद्रगढ़ अस्पताल की है. यहाँ के मौजूदा विधायक मोबाइल का टार्च जला के टाँके लगवा रहे हैं. ये स्थिति बद से बदतर हो गई है. आम आदमी प्रदेश सरकार के द्वारा दुग्ध विकास और पशुपालन योजना में भारी भरकम भोजन भेजा जाता है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचार के चलते सरकारी माल की चोरी करवाकर अपनी अकूत संपत्ति इकट्ठा करने लगते हैं. इसमें विभाग के आला अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी सम्मिलित रहते हैं. अभी एक मुद्दा उठाया था सैदपुर फार्म का. सैदपुर फार्म में जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार लाखों करोड़ों के हो रहे थे, जैसे कि मेरे पास अवगत आया, क्षेत्रवासियों के कॉल आ रहे थे सैदपुर फार्म से, जिसका मैंने जाके मौके पे सभी लोगों से बात करी, वार्तालाप करी, जिसमें कि हरीलाल मैकेनिक, भुवनेश मैनेजर, जो पूर्व में जिन्होंने ट्रांसफ़र ले चुके हैं, अपना नकलों की साइड पहुंच गए हैं. ठीक है, इसमें कि कई लोगों ने सैदपुर फार्म से कई लोगों ने जॉब करी है, जिसमें कि घोटाले पाए जा रहे थे. उन्होंने बताया जो रिटायर हो चुके हैं कि पहले कई 20-20 लाख के 30-30 लाख के घोटाले होते थे एक साल भर में, लेकिन आज 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है. जैसे कि अभी तो आप पहली बार हमको बता रहे हैं इस बारे में, इसको हम देखते हैं और वहाँ के फार्म मैनेजर से इसके बारे में जानकारी करते हुए इसका संज्ञान लेंगे और जो भी वास्तविक स्थिति होगी उस पर जांच करते हुए उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें.
तो वहीं अगली खबर जिला मुख्यालय से है, जहां पोल निवास में जिले में पहली बार फ्लावर शो रखा गया और निःशुल्क प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने अलग अलग प्रकार के फूलों का प्रदर्शन किया। वहीं प्रतियोगिता में 4 निर्णायक सदस्य भी मौजूद रहे। अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीएम कृषि महाविद्यालय अधिष्ठाता के मौजूद रहे। बेमेतरा जिले में फूलों की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता इसका यहाँ पर आयोजन किया है, जिसमें कि सबसे अच्छी बात ये रही कि ना सिर्फ बेमेतरा जिले से बल्कि बाहर दूसरे जिलों से भी लोगों ने यहाँ पर प्रतिभागी बन करके यहाँ पर भाग लिया है और बहुत ही अच्छे पौधे आप देख सकते हैं यहाँ पर उन लोगों ने रखे हैं, जिससे एक तरह से हम लोग सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का ये हमारी योजना है और जिसके लिए हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि घर में आप गार्डन लगाइए, चाहे वो किचन गार्डन हो, फ्लावर से रिलेटेड हो। तो इस तरह से हम उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहते हैं और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ के बहुत से स्कूलों ने हमारा बहुत ज़्यादा समर्थन किया और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपने प्रतिभागियों को भेजा। आज हम लोगों ने यहाँ पर इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।